Okay, ready everybody? We finished Revelation chapter 5 yesterday, and today we are going to enter into Revelation chapter 6. Revelation chapter 6. Okay? Regarding next Sunday's timing and venue, I will inform you during the week. आने वाले संडे के सर्विस का टाइमिंग और अगर पंजिम में अगर वापस हम स्टार्ट कर रहे हैं वो भी बताएंगे. कल फ़ोन आया था तो we will tell you exactly what it is. So, we are in Revelation chapter 6 today. Okay? What we see is in Revelation chapter 1, we see God giving vision. He is giving the prophecy. Parmeshwar, prophecy there I. Come on in front. There is a place here. Everybody can sit. Thank you. Okay. Sit down there. Sit with daddy there. Israel, go sit with daddy there. You'll come on this. Yeah, that's good. Keep these chairs backside always, okay? So we don't have to move around. You can put some here in front. See these places? Walk path. Always keep it behind. Carlton, you need to take a picture from there. People can still come during lockdown. Amen? Amen. Where there is a will, there is a way. Amen? Amen? This will be a testimony someday. You're getting everybody's face, right? Yes. Okay. We are in Revelation chapter number 6. हम प्रकाशनी के पुस्तक 6 chapter में आज हम प्रवास करने जा रहे हैं. हमने गए हफ्ते हम रेवलेशन चैप्टर 5 हम देखा, दो या 3 हफ्ते हम रेवलेशन चैप्टर 5 देखा. तो आज हम रेवलेशन चैप्टर 6 में आज हम प्रवास करेंगे. हम देख रहे कि पहला रेवलेशन चैप्टर 1 पे हम देखते परमेश्वर भविष्यवाणी देता है यूहन्ना को. सो गॉड इज गिविंग अ रेवलेशन थ्रू जीसस क्राइस्ट इन द हैंड्स ऑफ द एंजल टू जॉन द अपोस्टल. सो chapter 1 is about the deliverance of the prophecy. God delivering. Okay, somebody asked me yesterday, Pastor, क्या आप prophecy करते हो? So मैंने बोला जी हाँ मैं prophecy करता हूँ. तो मैं उन लोग ने बोला मेरा destiny क्या होगा? मैंने बोला यीशु मसीह को ग्रहण नहीं करेंगे तो तुम नरक जाएंगे, वो तुम्हारा destiny है. यीशु को ग्रहण करेंगे तो तुम स्वर्ग जाएंगे, वो तुम्हारा destiny है. Amen? People today want to, it's like looking at a young, beautiful girl who is 19, 20 years and say, I prophesy, God is telling me you're going to get married soon. We all know whether without prophecy or with prophecy. Right? A girl who is after 20 or after 18, she's going to get married one day or the other. Amen? Those things are not prophecy. Today people want that. Prophecy is the word of God. परमेश्वर का वचन जो है वो प्रोफेसी है, वो भविष्यवाणी है. द बाइबल सेज इट इज अ श्योर वर्ड ऑफ प्रोफेसी. आमेन. पत्रोस हमसे कहता है कि हमने देखा है, हमने छुआ है, हमने सुना है, लेकिन हम आपसे एक विनती करते हैं कि आपके हाथ में परमेश्वर ने एक बहुत श्योर भविष्यवाणी दिया गया है, वो उसको तुम पालन करो जब अंधेरा के समय में, ताकि तुम कभी भी भटक ना जाए. And Peter is telling us to hold on to the sure word of prophecy that we may not depart or falter in the time of darkness, because that is the true light. So Revelation 1 is the deliverance of prophecy. Revelation 2 and 3
प्रकाशनी के दूसरा और तीसरा अध्याय चैप्टर में जब हम पढ़ते हैं, हम वी आर टॉकिंग अबाउट द चर्च एज। ओके, कलीसिया के बारे में पढ़ते हैं। एंड दिस इज नॉट ओनली द पास्ट चर्च, जो 7 कलीसिया के बारे में लिखा है एशिया के बारे में, वो सिर्फ भूतकाल का नहीं है। दैट इज द कैरेक्टरिस्टिक इवन ऑफ चर्चेस टुडे। आज भी एक कलीसिया ऐसा ही है। एंड टुडे इन फैक्ट द चर्च, आज का समय में हम देखते हैं कि कलीसिया क्या हो गया है, बहुत ठंडा हो गया है। परमेश्वर का सामर्थ्य नहीं है, परमेश्वर का शक्ति नहीं है। टुडे पीपल हैव फाउंड आउट द सीक्रेट ऑफ ग्रोइंग द चर्च, and so the church is moving through the programs and not by the power of God. And so let's put some disco lights, let's bring some rock music, let's bring some lots of food, people will come. No, you can still preach the word of God and people will still come from far and near to hear the word of God. If you and I will depend on the power of God, God will grow His church. Amen. हम परमेश्वर के शक्ति में अगर हम स्थिर रहेंगे, परमेश्वर उसका कलीसिया को अभी भी बड़ा करेगा। इसके लिए हम नाटक करने का जरूरत नहीं है, या संसार का जो टेक्निक है उसको कलीसिया में लाने का जरूरत नहीं है। We don't have to do that. We just have to follow what God's word says. God's work should be built on God's word. परमेश्वर का काम परमेश्वर के वचन में बांधना चाहिए, मनुष्य का प्रोग्राम के द्वारा नहीं। A lot of churches are growing not with congregations but with crowd. So we find these churches in Revelation chapter 2 and 3. Today's church is very lukewarm. आज का कलीसिया कैसा है? बहुत ठंडा भी नहीं है, गर्म भी नहीं है, पूरा बिना कोई टेस्ट। And God is saying, I'm going to, they are becoming rich today, very rich. And so they think we don't need God, we have everything, look, we are blessed. But spiritually they are poor, there's no use. But God wants you and me to be like the church in Philadelphia. I believe with all my heart that our church is striving to be like the church in Philadelphia. Amen. जो कलीसिया छोटा है लेकिन परमेश्वर के वचन में स्थिर खड़ा है, वैसा हमारा कलीसिया होना चाहिए। ओके, तो हम देखते हैं। देन व्हेन वी गो टू रेवलेशन चैप्टर 4, हम जब रेवलेशन चैप्टर 4 में जाते हैं, वी सी द चर्च इज रैप्चर्ड, द चर्च इज कॉट अप। गॉड इज टेलिंग टू, जीसस इज कॉलिंग टू जॉन, कम अप हियर। इट्स अ टाइप ऑफ अ चर्च। तो यीशु मसीह यूहन्ना से कहता है तू ऊपर आ जा, और वहां हम देखते हैं इन वर्स नंबर 1, द चर्च इज कॉट अप। And then in Revelation chapter 5, we saw the church is in heaven and the Lamb is worthy to open the book. Amen? और हमने देखा कि स्वर्ग में कितने पुस्तक है, सिर्फ एक नहीं, बहुत सारी पुस्तक है। वो हमने Revelation chapter 5 में हमने देखा था। In Revelation chapter 5, we see the church is in heaven, worshiping God, praising God. कलीसिया किधर है? स्वर्ग में। In Revelation chapter 5. In Revelation chapter 6, these books are opened, the seal is opened. तो परमेश्वर यूहन्ना को दिखाता है, यूहन्ना को, कि संसार में क्या होने वाला है। Immediately when the church is caught up, जब चर्च को उठाया जाता है, संसार में क्या हो जाता है? एंटी क्राइस्ट, क्रिस्त विरोधी एंटी क्राइस्ट अपीयर्स। क्या हो जाता है? क्रिस्त विरोधी दुनिया में आ जाता है, और उसका काम चलाता है 7 साल के लिए। लेट्स लुक एट वर्स नंबर 1, रेवलेशन चैप्टर 6 वर्स नंबर 1। फिर मैंने देखा कि मेमने ने उन 7 मोहरों में से एक को खोला। अच्छा, किसने खोला? मेमने ने। The Lamb of God is worthy to open the book. Out of the 7 seals, he opened the first one. Yes. और उन चारों प्राणियों में से कितना प्राणी है? They are cherubs, right? 4 प्राणी। One is like a lion. एक किसका जैसा है? शेर जैसा। Another is like a man. Another is what? What is bachra? Bear? Ox? Another is okay? एक शेर जैसा दिखता है, एक का जो चेहरा है शेर जैसा है, दूसरा मनुष्य है और बछड़ा है और
अकाब जैसा। एक प्राणी में चार चार मुंह है और पूरा क्या है, पीछे और आगे आंख हैं, आंखें हैं। ओके, प्राणी है, कितने प्राणी हैं? चार प्राणी हैं। ओके, और उन लोग क्या करते हैं? और उन चारों प्राणियों में से एक का गर्जन सा हाँ। सा शब्द सुना, आ। क्या कहता है? कैसा शब्द सुन रहा है? आजा, आ। ओके, कम एंड सी। क्या है? इज दैट ओनली वन वर्ड? आ और देखो, रीड इट होल थिंग। फिर मैंने देखा कि मेमने ने उस 7 मोहरों में से एक को खोला और उन चारों प्राणियों में से एक का गर्जन का सा शब्द सुना, आ। हाँ, ओके, तो एक का क्या होता है? वन ऑफ द बीस्ट इज सेइंग कम। नाउ कम एंड सी। हमारे इंग्लिश पुस्तक में, बाइबल में लिखा है कम एंड आ और देख। से एवरीबॉडी से कम एंड सी। कम एंड सी बोलने के लिए कितना पैसा देना पड़ता है? आओ और देखो बोलने के लिए पैसा देना पड़ता है? नहीं। सब लोग बोलो कम एंड सी। हम जब बाइबल में पढ़ते हैं, हम ये कम एंड सी बहुत जगह में देखते हैं। इन जॉन चैप्टर 4 में हम देखते हैं एक औरत पानी निकालने के लिए आती है। वहां यीशु मसीह उससे मिलकर बात करता है, कहता है कि मैं जीवन का जल हूं, अगर मैं देने वाला पानी अगर तू पिएगी कभी प्यास नहीं होगी। तो वो क्या करती है? विश्वास करती है यीशु मसीह पर। वापस अपने शहर में जाकर के, गांव में जाकर क्या बोलती है लोगों को? कम एंड सी, कम एंड सी। राइट, इन जॉन चैप्टर 2 में यीशु मसीह जब चल रहा है, हम देखते हैं कि कुछ चेले यीशु मसीह को कहता है तुम किधर रहते हो? यीशु मसीह कहता है कम एंड सी। हालेलुया। आओ और देखो। अगर ये कम एंड सी, कम एंड सी, सब लोग बोलो कम एंड सी। ये रोज अगर दिन में एक बार, तो हर दिन एक बार तो किसी को बोलेंगे ना, नेक्स्ट संडे जगह नहीं रहेगा चेयर लगाने के लिए। कम एंड सी। हालेलुया। आओ और देखो। अगर हम देखो, अगर मैं एक आदमी को बोल सकता हूं और एक आदमी को ले आ सकता हूं, अगर इधर 70 लोग अभी है और 70 लोग जाकर बोलेंगे कम एंड सी, तो क्या होगा? 140 है ना? तो हम बाद में बाहर 15 डालना पड़ेगा। गॉड कैन बिल्ड इफ गॉड्स पीपल विल डू गॉड्स वर्क। आमेन। दैट्स व्हाई गॉड सेज गो ई। तुम पूरा दुनिया में जाकर क्या करो? चेले बनाओ, प्रचार करो, चेले बनाओ। एंड सो इवन इन हेवन इट्स द सेम इन्विटेशन, कम एंड सी। सो एक जो प्राणी है वो यूहन्ना से क्या कहता है? आकर देखो, कम एंड सी। देन वर्स नंबर 2, मैंने दृष्टि की, मैंने दृष्टि की। आई सो। यहां कौन बात कर रहा है? यूहन्ना बात कर रहा है, अपोस्टल जॉन। वो बात कर रहा है और कहता है कि मैं अभी स्वर्ग में देखा, और मैंने देखा वो जब पुस्तक खोला। यस, मैंने दृष्टि की और देखा एक सफेद घोड़ा है। हाँ, और उसका सवार धनुष लिए हुए हैं और उसे एक मुकुट दिया गया। Yes. और वो जय करता हुआ निकला कि और भी जय प्राप्त करे। And I saw and behold a white horse, and he that sat on him had a bow. Okay, he doesn't have arrow, he has a bow, and a crown was given unto him, and he went forth conquering and to conquer. यहां एक सफेद घोड़े में कोई आ रहा है और वो क्या कर रहा है? अपने हाथ में क्या है? धनुष है, लेकिन उसमें क्या नहीं है? तीर नहीं है। राइट? He has a bow but he doesn't have an arrow, but he has a crown because he is going to rule the world. वो पूरा दुनिया को क्या करने वाला है? राज करने वाला है। आज वही चल रहा है ना, वैक्सीनेशन ले लो, नहीं तो तुम्हें स्कूल जाने के लिए नहीं मिलेगा, काम नहीं मिलेगा, सवार करने नहीं मिलेगा। वो प्रेशर करने वाले हैं। दे आर गोइंग टू प्रेशर। नाउ आई एम नॉट सेइंग दिस वैक्सीनेशन इज द मार्क ऑफ द बीस्ट, मैं ये नहीं कह रहा हूं, बट दिस इज द प्रोग्रामिंग। हमारा मन को क्या हो रहा है? प्रोग्राम कर रहे हैं। हाँ, तो रेवलेशन चैप्टर 6 में वर्स 1 और 2 में कौन आ रहा है?
is come is the Antichrist. वो सफेद घोड़ा में आ रहा है. लेकिन जब हम रेवलेशन चैप्टर 20 में देखते हैं, वहां भी और एक आदमी आ रहा है. वो सफेद घोड़े में आ रहा है, लेकिन वो सफेद घोड़े में अकेला नहीं आ रहा है, पूरा सवारी को ले आ रहा है स्वर्ग से, और संसार में जो भी मसीह विरुद्ध है उन सब का नष्ट करने वाला है. Amen. In Revelation chapter 19, 20, 21, when we read, it is the Lord Jesus Christ. Revelation chapter 6, it is the Antichrist. 6, 6, 6, number of a man. Right? तो यहां क्या हो रहा है, वो सफेद घोड़े में जब आता है, वो लोगों को बोलता है मैं शांति ले आ रहा हूं. इससे बचने के लिए क्या करना है आज? क्योंकि रेवलेशन चैप्टर 6 में क्या लिखा है मालूम है? ये संसार में आप बोल रहे अरे कभी कोरोना खत्म होएगा. कोरोना कभी खत्म नहीं होगा, क्योंकि इसे अभी बहुत खींचने वाले हैं. ये और 10-20 साल खींचने वाले हैं. कोरोना के बाद डेल्टा आएगा, बाद में और कुछ आने वाला है. तो अभी शुरू हो गया, ये बंद नहीं होने वाला. ये धरती सब सुंदर नहीं होने वाला है. ये संसार, ये जो धरती है, सत्यानाश होने वाला है. और सिर्फ मसीह लोगों के दिल में क्या है? होप है, विश्वास है. व्हाट इज होप? आशा है कि हमारा परमेश्वर जो वादा किया वो आकर हमें जहां वो है वहां हमें ले जाएगा. आमेन. The problem today is the problem today is the rapture is delayed, not just for any other reason, but I think it's because Christians are so comfortable on the earth. We really don't want to give up. We are not even homesick. We'll just love this world so much. We don't even want to go to heaven. अरे नहीं, शादी के बाद रैप्चर होएगा तो अच्छा होगा. नहीं, शादी हो गया, 2-3 बच्चा होने के बाद रैप्चर होएगा. नहीं यार, अभी काम किया, मुझे एक बड़ा चेक आने वाला है, उसके बाद. We are always waiting for the next blessing and next, and so we are not looking up to heaven or waiting for the rapture. The church is very comfortable on the earth. The day the church will be homesick, जब हम पूरे इसको नफरत करने शुरू करेंगे, then we are going to cry out to God. Oh God, we are going to groan. In the Old Testament हम देखते हैं कि जब इज़राइल के लोग इजिप्ट में थे, 400 साल बहुत मौज मस्ती करते थे, काम करते थे, बहुत मौज मस्ती करते थे, खाते थे, काकड़ी खा रहे थे, ऑनियन खा रहे थे, प्याज खा रहे थे, everything they were enjoying. And then finally they got fed up. And the Bible says they started groaning. They could not pray. Big pain. दिल में बहुत दर्द होने लगा. उन्हें रोने लगे परमेश्वर के पास. और तभी बाइबल में लिखा है, when the people of Israel started groaning, God remembered his covenant. And then God delivered them out of Egypt. The church is not groaning. The church is enjoying. The church has brought world inside. आज हम क्या करते हैं? हम दुनिया को कलीसिया में ले आकर हम दुनिया बन गए हैं. इसलिए हम दुनिया को छोड़कर जाने का मन ही नहीं करता है किसी को. The day we will become homesick, it is the day when the Lord will come to take us home. We got to be homesick. Okay? Of course there are many other things, but just one thing, the church has to get homesick. When we will start groaning, oh God, this is very bad. Lord, I really don't want to live on this earth. The sin has increased so much. It's so much of persecution has come against the church. हम जब रो पड़ेंगे परमेश्वर के चरणों पर, और हम जब नफरत करने शुरू करेंगे इस दुनिया को, परमेश्वर हमारा प्रार्थना सुनेगा. वो आएगा बादलों में और हमें ले जाएगा. उसका कोई भी वादा ना होगा अधूरा, हर एक वादा उसका होता है पूरा. उसका कोई भी वादा, उसके आने का वादा भी होगा पूरा. देखेगा सारा जहां. हालेलुया. वो आने वाला है, उसका वादा पूरा करेगा. ओके, बट इन रेवलेशन चैप्टर 6 कौन आ रहा है? एंटीक्राइस्ट आ रहा है. क्रिस्त विरोध आने वाला है. लेकिन वो जब आ रहा है, हम किधर है? हम स्वर्ग में हैं. वी आर इन हेवन. द चर्च इज कॉट अप. तुम बोलेंगे पास्टर जी ये क्यों, ये अभी पढ़ना जरूरत है? हम स्वर्ग में हैं तो ये क्यों हमें पढ़ना चाहिए? The word of God tells us we should be prepared.
हमें जानना जरूरी है ताकि हम लोगों को सच्चाई बता सके, ताकि आने वाले परमेश्वर के क्रोध से हम लोगों को बचा सके. The wrath of God is going to be poured upon this earth. If you are not saved, अगर आपने यीशु मसीह को ग्रहण नहीं किया, परमेश्वर का क्रोध आपके ऊपर ऑलरेडी है. The Bible says. Read John chapter 3 verse 33. John chapter 3 verse 36. जो पुत्र पर विश्वास करता है, जो पुत्र पर विश्वास करता है, अनंत जीवन उसका है. अनंत जीवन उसका है. हालेलुया. जो लोग ने यीशु मसीह को विश्वास करते हैं, हालेलुया बोलो. आमेन. देन नेक्स्ट. परंतु जो पुत्र को नहीं मानता, जो पुत्र को नहीं मानता, वो जीवन को नहीं देखेगा, वो जीवन को नहीं देखेगा, परंतु परमेश्वर का क्रोध, लिसन टू दिस वेरी केयरफुली, परंतु परमेश्वर का क्रोध उस पर रहता है. उस पर रहता है. The wrath of God abideth on him. It's already there. For an unbeliever, the tribulation has already started. The spirit of Antichrist is all over the world right now. Of course, the Antichrist will come after the rapture. But the spirit of Antichrist is already on the earth. And the wrath of God abideth on the unbelievers. So if you don't want to go to hell, then you need to repent, turn away from your religion, turn away from your idolatry, and turn to the Lord Jesus Christ for salvation. Amen? God doesn't want you to hold on to your religion and your sin and your idols and say, please, I want you also. God says, divorce your old and then come to me and I will accept you and I will make you my bride. That's what Jesus says. So when Antichrist comes, जब विकृष्ट विरोधी आता है, वो कौन से घोड़े में आता है? कौन से घोड़े में? सफेद घोड़े में. क्यों आता है सफेद घोड़े में? Because when he comes on the white horse, white is a picture of what? Peace. क्या है? शांति. इसलिए तुम देखिए ना, चर्च में जाओ, कैथोलिक चर्च में जाओ, फादर क्या करता है? व्हाइट कलर नाइटी पहनता है ना? हाँ, डैडी मम्मी जैसा पहनता है. हाँ, व्हाइट कलर नाइटी. बिकॉज व्हाइट इज व्हाट? ए पिक्चर ऑफ पीस एंड होलीनेस. हम अंदर से सड़ा हुआ है, लेकिन बाहर से चूना मारा हुआ है हमारे अंदर. अब ऊपर. We are all like that. And so what he does, he comes with a sign of peace. I'm bringing peace. मैं शांति शांति ले आया हूँ. सब कुछ मैं शांति देने वाला हूँ. वो सफेद घोड़े में आ रहा है. और लोग क्या कहेंगे मालूम है? अरे यही हमारा मसीहा है, इसके पीछे हम भागेंगे. वो कैसा हमें कैसा वो गुमराह करेगा? How will he cheat us? Through signs and wonders. Signs and lying wonders. Look at 2 Corinthians chapter 11. दूसरा कोरिन्थियर chapter 11 देखेंगे हम. Second Corinthians chapter 11. Look at the last verses. Verse number 13 onwards. 13, 14 and 15. क्योंकि ऐसे लोग झूठे प्रेरित और छल से काम करने वाले और मसीह के प्रेरितों का रूप धरने वाले हैं. ये कुछ अचंभे की बात नहीं, क्योंकि शैतान आप भी ज्योतिर्मय स्वर्गदूत का रूप धारण करता है. स्वर्गदूत का रूप वो धारण करता है. वो कैसा आता है? He comes as an angel of light. As an angel. Who is the angel of light? The Lord Jesus Christ. But the Antichrist always counterfeits. He comes as an angel of light. वो ज्योति का, स्वर्गदूत का रूप धारण करता है. और जब वो ज्योति का स्वर्गदूत जैसा आएगा, with white, everybody will sing, अरे this guy is holy. ये मसीहा है, ये हमें बचाएगा, ये हमें शांति देगा. And he is going to cheat everybody. Then verse 15. इसीलिए यदि उसके सेवक भी
धर्म के सेवकों का सा रूप धरें तो कोई बड़ी बात नहीं, Yes. परंतु उनका अंत उनके कामों के अनुसार होगा। हाँ, परंतु उनका अंत उनके कामों के अनुसार होगा। सो इवन टुडे लॉट ऑफ पीपल, आज इसीलिए देखो, प्रचार करो परमेश्वर का प्रचार, उधर 100 लोग आएंगे, लेकिन बोलो इधर चमत्कार होता है, प्रोफेसी होता है, हीलिंग होता है, उधर बहुत लोग आएंगे, है ना? बिकॉज पीपल लाइक एक्टिंग, पीपल लाइक एंटरटेनमेंट, दे डोंट वांट द ट्रूथ। सत्य किसी को नहीं मांगते, आज बहुत कम लोगों को सत्य मांगता है, और जो सत्य में चलेंगे वो सत्य में रहेंगे। लेकिन दुनिया आज मूर्ख बन गया है, एंड दे आर रनिंग आफ्टर लाइज। लुक एट 2 Thessalonians chapter 2 verse number 7, 8, 9 and 10. 2 Thessalonians chapter 2 क्योंकि अधर्म का भेद अब भी कार्य कर जाता है। हाँ, अभी it's not going to start only in Revelation chapter 6. Revelation chapter 6, the Antichrist is going to come. But already the spirit of Antichrist is at work. The mystery of iniquity is already at work. Right? Yes. पर अभी एक रोकने वाला है। पर अभी एक रोकने वाला कौन है वो? It is the Holy Spirit. Amen? पवित्र आत्मा जो है वो इसे रोक रहा है अभी। It is the presence of the Holy Spirit in the church that is hindering the entrance of the Antichrist or the revelation of the Antichrist on the earth. The moment the rapture takes place, the church is taken up, the Holy Spirit permanently dwelling also will be taken up. Then the Holy Spirit during the time of tribulation will work a temporary work like in the Old Testament. So the Holy Spirit, when the church is taken up, okay, what will happen? Then the Antichrist will be revealed. So who is hindering? The Holy Spirit is hindering. अब तक वो दूर ना हो जाए, वो रोके रहेगा। Yes. तो वो अधर्मी प्रकट होगा, जिसे प्रभु यीशु मसीह अपने मुंह के फूंक से मार डालेगा। Hallelujah. So the Lord Jesus is going to destroy with the spirit of his mouth, destroy the Antichrist when the Lord Jesus Christ is coming in the second coming. Then go ahead. और अपने आगमन के तेज से Yes. भस्म करेगा। उस अधर्मी का आना शैतान के कारण। देखो ये सुनो, उस अधर्मी का, धर्मी का नहीं, अधर्मी का, अनराइचियस, उस अधर्मी का आना शैतान के कार्य के अनुसार, सब प्रकार की झूठी सामर्थ। Look at this, सब प्रकार की झूठी सामर्थ। अरे पास्टर आप क्यों इसके उसके बारे में गलत बोल रहे हैं? क्यों पास्टर का नाम ले रहे हैं? क्यों उतना बड़ा बड़ा प्रचार का नाम ले रहे हैं? वो इतना बड़ा गाड़ी में आता है, उतना बड़ा सूट पहनता है, इतना एरोप्लेन में भागता है, उसको परमेश्वर ने इतना, आप बोलते वो झूठा प्रचारक है? पास्टर उसका नाम क्यों आप ये कर रहे हो? उसको जज क्यों कर रहे हो? दिस इज द प्रॉब्लम टुडे। और क्योंकि जहां हीलिंग होता है लोग के सोचते कि वो परमेश्वर का काम है, लेकिन देखो बाइबल में क्या लिखा है? झूठी सामर्थ और चिन्ह और अद्भुत काम के साथ और नाश होने वालों के लिए। Even him who is coming is after the working of Satan with all power and signs and lying wonders. They will do wonders. They will do some kind of miracles and all. But the Bible says it is a lying wonders. झूठा काम। They will manipulate. अमेरिका में एक बड़ा फेमस चर्च है, बेथेल चर्च बोल के, उसका पास्टर बिल जॉनसन है, और एक औरत उस चर्च में काम कर रही थी। तो जहां एसी का जो ये होता है, व्हाट यू कॉल फॉर इंटीरियर, उन लोग ने वो अभी यूट्यूब में आप देख सकते हैं, औरत वहां से अभी बाहर निकल के अपनी टेस्टिमनी दे रही है कि वो चर्च का जो पास्टर है और वो चर्च का जो स्टाफ है, वो मेन जो लोग हैं, वो सब प्लानिंग कर रहे थे कि ये जो ऊपर जो ये है एसी का डक, ओके,
जो भी है, समझा ना आप लोग ने? तो उसमें क्या उन लोग ने डाला था? दे पुट पाउडर्स, दे पुट गोल्डन कलर, गोल्ड डस्ट। हाँ, उन लोग ने क्या किया? वो एसी के अंदर डाल दिया, और जब वर्शिप शुरू हो गया और लाइट, ब्लू लाइट और ग्रीन लाइट बजने लगी और वर्शिप शुरू होने लगा, पास्टर ने बोला पवित्र आत्मा आने वाला है हमारे ऊपर। और तभी वो औरत का काम है कि खींचने का काम, वो रस्सी खींचने का। जब रस्सी खींचेगा ऊपर से डस्ट गिरेगा लोगों के ऊपर। एंड इट ऑल फेल ऑन लॉट ऑफ पीपल। और सब लोग बोले मेरे हाथ में गोल्ड डस्ट गिरा है, मेरे चेहरे में गोल्ड डस्ट गिरा है। और लोग बोलने लगे यहाँ परमेश्वर स्वर्ग से गोल्ड डस्ट फेंका। नाउ दैट लेडी इज आउट ऑफ दैट चर्च and she is giving testimony that this is what is going on, this is what was told to me to do. आज गोवा में भी ऐसा हो रहा है। lying wonders परमेश्वर के वचन में लिखा है। इसीलिए परमेश्वर अगर तुम्हारी जिंदगी में सामर्थ करना है या अनुग्रह या परमेश्वर एक मिरेकल करना है, वो जरूर करेगा तुम्हारी जिंदगी में। You just have to ask by faith. And if it is God's will, He will heal you. Amen. If it is not God's will, you and I can still suffer for Christ. One of the verse that most preachers don't preach is Philippians chapter 1:29. Read that. Philippians 1, keep that verse there. Philippians 1:29. Philippians 1:29 में क्या लिखा है? For unto us it is given not only to believe in His name, but also to suffer for His sake. What is written? क्योंकि मसीह के कारण तुम पर ये अनुग्रह हुआ कि ना केवल उस पर विश्वास करो पर उनके लिए दुख भी उठाओ। Amen. Not only to believe in Christ, but then suffer for Christ. It is given, the Bible says. It's a gift. Suffering for Christ is a gift. Suffering will bring patience in our life. It will purify our life. Amen. So just don't look for a comfortable mattress of so-called Christianity, which the world is offering you and me today. You stay with the word of God. Amen. See, I'm telling you, अगर तुम परमेश्वर के वचन में स्थिर खड़े रहेंगे, तो आपको कोई भी गुमराह नहीं कर पाएंगे. Amen. And God will definitely, if God wants to bless, He will bless. No one can stop your blessing from God. Hallelujah. So the Antichrist is going to come. Okay, but he is going to come how? With signs, miracles, signs and lying wonders. वो लोगों को क्या करने वाला है? गुमराह करने वाला है. He is going to cheat the people. So, and that's why in Revelation chapter 6 जब Antichrist आता है, बहुत सारे लोग, दुनिया के लोग क्या करेंगे? उसे विश्वास करेंगे, उसे ग्रहण करेंगे. And look at Revelation chapter 6. And what he's doing, verse number 2? मैंने दृष्टि की और देखो एक सफेद घोड़ा है और उसका सवार धनुष लिए हुए हैं और उसे एक मुकुट दिया गया और वो जय करता हुआ निकला कि और भी जय प्राप्त करे. हाँ, वो क्या करता है? जय प्राप्त करता है. He's going to deceive a lot of people all over the world. बॉस वो क्या करने वाला है? बोलेगा मैं शांति ले आ रहा हूं. I'm come to bring peace. The Bible says when they shall say peace and safety, sudden destruction shall come upon them. यहां जो है बहुत खतरनाक. यहां from Revelation chapter 6 until Revelation 20, the world is in a mess. प्रकाशनी के चैप्टर 6 से बाकी सब चैप्टर में हम क्या पढ़ते हैं कि ये संसार बर्बाद हो रहा है. But praise be to God, the church is up here and not here. Amen. कलीसिया अभी किधर है? स्वर्ग में परमेश्वर के साथ है, धरती में एंटीक्राइस्ट के साथ नहीं है. यीशु मसीह के साथ स्वर्ग में है, अंतक्रिस्त विरोधी मसीह विरोधी के साथ संसार में नहीं है. लेकिन ये संसार में क्या होने वाला है? बहुत कष्ट होने वाला है. There's a lot of destruction that is going to come. Life is going to be miserable. When we read down that, we will look, maybe I don't want to say too much, then you go home and forget everything. But next Sunday when we come, we're going to see what will happen. And if you are not saved,
योर लाइफ इज गोइंग टू बी मिजरेबल। अगर आपने यीशु मसीह को ग्रहण नहीं किया, आपका जिंदगी, आपका जीवन सत्यानाश होने वाला है। अगर इस परमेश्वर के क्रोध से तुम्हें बचना है, तो परमेश्वर का प्यार को तुम्हें क्या करना पड़ेगा? ग्रहण करना पड़ेगा। अगर तुम आज परमेश्वर का प्यार को ग्रहण नहीं करेंगे, परमेश्वर ही तुम्हारी जिंदगी में क्या करेगा? एक झूठा बात को भेजेगा ताकि तुम झूठ पर विश्वास करें, क्योंकि आप सत्य को नफरत किया था। Look at that verse in Thessalonians that we just read, 2 Thessalonians chapter 2. देखो परमेश्वर क्या कहता है। परमेश्वर आज हम सब को क्या कर रहा है? वार्निंग दे रहा है। He is not telling, so tomorrow you say, well, I did not know this is happening. 2 Thessalonians chapter 2. मुझे मालूम नहीं था ये सब होने वाला है। अगर कोई मुझे बताया तो मैं यीशु मसीह को ग्रहण करता। आज हम सब यहाँ बैठे हैं। Amen. People are going to listen. You all are listening today. There are others who are going to listen and watch from the YouTube. And everybody is warned. If you reject the love of God today, what is the love of God? Jesus Christ is the love of God. Amen? Arey, God is loving, God is kind, God will forgive me. No. If you don't believe and receive the love of God, nothing else is going to come into your life. अगर परमेश्वर का प्यार को तुम नफरत करेंगे, you can tell what the world tells, you are still under the wrath of God. But if you trust and receive the Lord Jesus Christ, you are in the love of God. Hallelujah. Amen. Let's give a glory to God with a round of applause, that if you are saved today, you are in the love of God. Amen. You are in the love of God. If you're not, then you are in the wrath of God. God's love is not bhaji pav. God's love is not 3-time meal at home. God's love, that is God's general blessing. Whether you believe in God or not, God gives your needs. God's love is not rain. That is general blessing. It rains upon believer and unbeliever. God's love is Jesus Christ. Everything is in Christ. If you don't have the love of Christ, love of God, you have nothing. अगर तुम यीशु मसीह परमेश्वर का प्यार को ग्रहण नहीं किया, तो क्या नहीं है? कुछ भी नहीं है तुम्हारी जिंदगी में। तुम्हारी जिंदगी में सिर्फ संसार का प्यार है। अगर हम परमेश्वर का प्यार को नफरत करेंगे, हमें क्या मिलेगा? परमेश्वर का क्रोध मिलेगा। कैसा मिलेगा? Because in the time of tribulation, even if you want to get saved, God will not allow you to get saved, because God himself will send a delusion that you will believe a lie. Look at 2 Thessalonians chapter 2, verse number 10. 10 and 11. और नाश होने वालों के लिए, और नाश होने वालों के लिए अधर्म के सब प्रकार के धोखे के साथ होगा। अधर्म के सब प्रकार के धोखे के साथ, क्योंकि उन्होंने सत्य से प्रेम नहीं किया। क्योंकि क्या है? उन्होंने किससे प्रेम नहीं किया? सत्य से प्रेम नहीं किया। कौन सत्य है? यीशु मसीह ने क्या बोला? मैं ही सत्य हूं। क्योंकि उन लोग सत्य से प्रेम नहीं किया, क्योंकि उन्होंने सत्य से प्रेम नहीं किया, जिससे उनका उद्धार होता। हाँ, हमें उद्धार किससे मिलता है? सत्य से मिलता है। आमीन। लेकिन उन लोग ने बोला नहीं, हमें यीशु मसीह नहीं मांगता है। यीशु मसीह कौन है? हमें नहीं मांगता है। हमें ऐसा मसीह ने हमें एक बंदर जैसा भगवान मांगता है, हाथी जैसा भगवान मांगता है, सांप जैसा भगवान मांगता है, कुत्ता जैसा भगवान मांगता है। तो लोगों ने आज क्या किया? अपने हाथ में क्या किया? एक हाथी को बनाया, उसको भगवान बनाया। चूहा को बनाया, उसको भगवान। वो चोरी करता है, उसको भगवान बनाया। सांप काटता है, उसको भगवान बना दिया। They are made creatures as God and worshipped them, and that's why God's anger is upon them. What is that? Yeah, go ahead. इसी कारण परमेश्वर verse 10 and 11. और नाश होने वालों के लिए अधर्म के सब प्रकार के धोखे के साथ होगा, क्योंकि उन्होंने सत्य से प्रेम नहीं किया। क्योंकि उन्होंने सत्य से प्रेम नहीं किया, जिससे उनका उद्धार होता। जिससे उनका उद्धार होता। तुम्हें उद्धार, तुम्हारा आत्मा का शांति, पाप का क्षमा, नरक से छुटकारा सिर्फ यीशु मसीह के द्वारा ही मिलेगा। हालेलुया।
सिर्फ यीशु मसीह के द्वारा और किसी के द्वारा, कलेसिया के द्वारा नहीं, पास्टर के द्वारा नहीं, बैप्टिस्ट चर्च के द्वारा नहीं, पास्टर लॉर्डसन के द्वारा नहीं, सिर्फ यीशु मसीह के द्वारा है। Amen. There are too many Baptist people in the Baptist church and going to hell because they have not saved. A Baptist church cannot save you. Pastor Lordson cannot save you. Only the Lord Jesus Christ can save you and me. कलेसिया किसी को उधार नहीं देता, पास्टर किसी को उधार नहीं देता, सिर्फ और सिर्फ केवल यीशु मसीह हमें पाप से क्षमा कर सकता है, नरक से छुटकारा दे सकता है, आत्मा का उद्धार दे सकता है। हालेलुया। वर्स नंबर 11। इसी कारण बिकॉज ऑफ दिस, इसी कारण मतलब क्या? क्योंकि इन लोगों ने क्या किया? यीशु मसीह के सत्य को ग्रहण नहीं किया। इसी कारण परमेश्वर उनमें एक भटका देने वाले सामर्थ को भेजेगा। कौन भेजेगा? शैतान भेजेगा? कौन भेजेगा? परमेश्वर उन्हें क्या भेजेगा? भटका देने वाला सामर्थ, a false gift, a lie. It says, you believe, you did not receive the truth, so now you go and receive what you want. You take the lie, but not the truth. So कुछ लोग बोलेंगे नहीं, हाँ मैंने यीशु मसीह के बारे में सुना आज, लेकिन मैं ग्रहण नहीं करूंगा, मैं ट्रिबुलेशन में ग्रहण करूंगा। No, 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 no. Some people think I'm going to enjoy my life now. I'm not going to receive Jesus Christ. I'm not going to believe and repent of my sin and believe Jesus. During the time of Antichrist, I will believe in Jesus. No. If you reject Jesus today, even when you enter the tribulation, when you enter into the wrath of God, the 7 years of time of Jacob's trouble, even if you want to believe, God will say no to you. He will harden your heart. God will judicially harden your heart. God says, I will send a strong delusion that they should believe a lie. और लोग क्या करेंगे? झूठ पर विश्वास करेंगे उस समय, क्योंकि आज सत्य को इनकार किया है, नफरत किया है। So even if you want to be saved during the time of tribulation, you cannot, because God will send a delusion that you will believe a lie. So right now, this is the time to believe in the Lord Jesus Christ. Repent of your sin, turn away. नहीं, मैं ये करूँगा तो क्या लोग क्या बोलेंगे, मेरा धर्म क्या करेगा? कल धर्म तुम्हें छुड़ाने के लिए नहीं आएगा नरक से, सिर्फ यीशु मसीह आज तुम्हें छुड़ा सकता है। आमेन। नहीं, लेकिन अगर उन लोग हमें जिंदा मारेंगे तो मारने दो भाई, जिंदा मारेंगे तो नेक्स्ट सेकंड हम स्वर्ग में परमेश्वर के साथ रहेंगे। For me to die is gain and to live is Christ. हालेलुया। मसीह लोग कभी मरने के लिए डरना नहीं चाहिए। हमें स्वर्ग जाना है, लेकिन डर डर के हम घूमते हैं, है ना? You know, there are people saying, I have no fear. What is that? I have no. That is a song, no? That is, I don't have any fear to live now because Christ has set me free. आज कलेसिया में सब मास्क पहन के बोलते हैं मैं डरता नहीं, मैं डरता नहीं। मास्क पहनते बोलते मैं डरता नहीं। अरे भाई, तो फिर मास्क क्यों पहनाए? हाँ? Okay, so now is the time. अभी समय है। शैतान क्या करने वाला है? लोगों को गुमराह करने वाला है और बहुत सारे लोगों को झूठ में खींचेगा। लेकिन आज भी परमेश्वर, हमारा पवित्र पिता परमेश्वर, उसका प्यार आज भी जता रहा है। परमेश्वर का प्यार सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह है। एंड व्हेन यू हैव क्राइस्ट, यू हैव एवरीथिंग। आमेन। जब तुम यीशु मसीह को ग्रहण करेंगे, विश्वास करेंगे उस सत्य को, when you receive the gospel, believe in the gospel, your sins will be forgiven, you shall have everlasting life, you will be redeemed from hell, you will have peace that no one can give but Christ can give alone. Amen. ये संसार हमें शांति नहीं दे सकता है, सिर्फ यीशु मसीह हमें शांति दे सकता है। And that is only possible when you come to Jesus and you repent of your sin and say, Lord, I surrender. I'm sorry. I've tried everything. My sin will not save me from hell. My sin will only send me to hell. So I divorce my sin. I turn away from my sin. I cannot save me. So I turn to you, O God, so you can forgive my sin and you can cleanse me. I believe that you are the one true God. Amen? We need to believe that Jesus Christ is God. 1 Timothy 3:16, पहला तिमोथी 3 अध्याय वर्स नंबर 16 में क्या लिखा है कि परमेश्वर मनुष्य बना।
Amen? We need to believe that Jesus Christ is God. You can believe whatever you want, but if you don't believe Jesus is God, you can believe in death, burial, and resurrection. But if you don't believe Jesus is God, you are still going to hell. I'll tell you, there is too much of false gospel preached on the earth. Believe in the Lord, pray a prayer, come to the altar. No. You got to believe who Jesus is and what he has done. यीशु मसीह कौन है और उसने क्या किया है, वो विश्वास करना चाहिए और ग्रहण करना है कि यीशु मसीह कौन है, सच्चा परमेश्वर है. He is the one true living God. He became man. वो मनुष्य बनकर इस दुनिया में आया. And he took yours and my sins and the sins of the whole world upon him. And he died on the cross of Calvary. यीशु मसीह परमेश्वर है, वो मनुष्य बनकर इस दुनिया में आया आपके और मेरे पाप के लिए, संसार के पाप के लिए. वो सलीब पर क्या किया, अपने आप को कुर्बान किया है, लहू बहाया. क्योंकि सिर्फ लहू से, यीशु मसीह के लहू से हमारा पाप का क्षमा होता है. We have to believe in that. And यीशु मसीह मरा, गाड़ा गया और तीसरा दिन वो वापस जी उठा. If you don't want to go, अगर परमेश्वर के क्रोध, God's wrath. This is interesting. Next week और बहुत इंटरेस्टिंग होगा कि क्या होने वाला है, कैसे होने वाला है, इससे हम कैसे बच सकते हैं. The wrath of God, that's mentioned in Revelation chapter 6. And if you don't want to go here, and if you want to escape, see, some people think, rapture is a doctrine of escape. Of course we want to escape. We don't want to, we don't want to suffer. We don't want to be under the rule of Antichrist. We want to get out of this world. Amen? God, Christ is not building a mansion on earth for you and me. He is building a mansion up there where he is. He said, I'm going to come and take you where I am. जहां वो है, यीशु मसीह है, वहां वो हमें ले जाएगा. And so our eyes should be up on the heaven. Amen? We need to be trusting in Christ. We need to be asking God, to save our family and try to share the gospel to others, preach the gospel to others. And God will save whom he has to save. We don't want to be in God's wrath. ये परमेश्वर का क्रोध में आप जाना नहीं चाहिए. अगर तुम यहाँ नहीं है तो यहाँ जाएंगे. क्रिस्त विरोधी का, मसीह विरोधी का राज में आप क्या करेंगे, जाएंगे. You will be a slave there, suffering and miserable. A lot of people are saying the world is going to get better. It's not going to get better. ये दुनिया खूबसूरत नहीं होने वाला है और बर्बाद होने वाला है. It's a bad news to the world, but it should not be considered as a bad news for you. You have a good news, and the good news is the gospel. And Jesus Christ is the good news. Amen? God is the gospel. Jesus Christ is the gospel. The world is going to come under the wrath of God. This world is going to be destroyed. So don't put your heart on this world. Put your heart in Christ. Put your eyes on Christ. Put your intention upon Jesus Christ. हमारी हर सांस यीशु मसीह के लिए होना चाहिए. हमारी नज़र यीशु मसीह पर होना चाहिए. Amen? And so, my dear friend, he is coming to deceive on a white horse. Don't fall for miracles, signs, and lying wonders. You stay with the word of God, you will never falter, you will never be deceived. Hallelujah. आइए हम प्रार्थना करेंगे.